Good morning, dear students. Today we are going to study the chapter 1 from the physics book, that is motion. Okay, now moving ahead and looking forward that what is in the chapter. So let's see the introduction. As you all know from the term motion, it is clearly understood that motion is defined as a change of position of an object with time with respect to its surroundings. जैसा कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू पहले ही बता चुकी हूँ कि मोशन क्या होता है, लेकिन ये दूसरी वीडियो आपके रेफरेंस के लिए है ताकि आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया था कि मोशन इज़ डिफाइंड एज ए चेंज ऑफ पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब चेंज आता है समय के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ नोन एज मोशन। ओके, एंड द चेंज इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, यानी कि उसका रेफरेंस पॉइंट कि वो इनिशियली किस पोजीशन पे था एंड वहाँ से वो किस पोजीशन पे गया, दैट इज़ नोन एज मोशन। And similarly, an object is at rest when the position of the object does not change with time with respect to its surrounding. It means until and unless the object is not changing its position, तो वो object rest पे माना जाता है with respect to its surroundings. Okay, so let's see an example. A moving train is in motion because its position changes with time. एग्जाम्पल ऑफ मोशन इज एक मूविंग ट्रेन मोशन में है बिकॉज वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन भी बदलती जा रही है। नाउ कंसिडर अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन फॉर समवन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। द पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन इज इन मोशन, बट फॉर को पैसेंजर्स द पर्सन इज एट रेस्ट एज द पोजिशन ऑफ द पर्सन डज नॉट चेंज विद टाइम। और वहीं आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और कोई व्यक्ति बाहर है प्लेटफॉर्म पे, तो जो प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति है उसके लिए जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है वो मोशन में है, ठीक है, बिकॉज द ट्रेन इज़ मूविंग। बट वहीं जो ट्रेन के अंदर दूसरा व्यक्ति बैठा है उसके लिए पहला व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठने वाला वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, who is sitting in the train. Okay, so this is all about motion, and you should be clearly aware that until and unless there is a change in position of any object with respect to time, only then the body is considered to be in motion. Okay, hence we need to consider the surroundings or the point of observation while describing the state of motion of an object, and this surroundings is called as reference frame या reference point या origin। जैसा मैंने आपको बताया था, वो initial state जहाँ से उसने move करना start किया वो कहलाता है उसका origin या उसका reference point. Okay, now moving ahead, let's see some physical quantities. So a physical quantity is any physical property that can be expressed in numbers. For examples, time is a physical quantity as it can be expressed in numbers, but anger is not a physical quantity because it cannot be expressed in number. So anything which can be expressed in numbers is known as a physical quantity, and physical quantity are of two types, as you can see, the scalar quantities and the vector quantities. अब देखते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नाउ द स्केलर क्वांटिटीज़, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी completely described only by its magnitude, then it is scalar quantity। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में कि अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रही है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। एंड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ओनली हैव टू नो हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी
that only requires magnitude to be expressed. Therefore, we can say mass is a scalar quantity. Here you can see an example of is given that to measure the mass of any object which is given to you, we just need to know that how much mass does the body have. For example, the mass of the body is around 30 kg. So we are only getting to know the information of the mass. It means the body is conveying us only the magnitude, so it is a scalar quantity. Okay. And one more thing, you can add scalar quantities by simple arithmetic means. आप scalar quantities को simple arithmetic means से आप add भी कर सकते हैं. Is that clear? Okay. Now moving ahead, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़. अभी आपने स्केलर के बारे में पढ़ा, अब है वेक्टर क्वांटिटीज़. सो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड only by their magnitudes. These physical quantities require direction along with magnitude. जैसे कि अभी आपने देखा था स्केलर क्वांटिटीज़ सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रही हैं, लेकिन जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगी कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़. ओके, यानी कि the physical quantities which tells us about the magnitude as well as the direction are known as vector quantities. For example, if we consider force, then along with the magnitude of the force we also have to know the direction along which the force is applied. Therefore, to describe a force we require both its magnitude and direction, and this type of physical quantity is known as vector quantity. यानी कि हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमेशा डायरेक्शन का भी पता होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एंड ऐसी ही क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. Students, please note that vector quantities cannot be added or subtracted by simple arithmetic means. जैसे कि आपने स्केलर क्वांटिटीज़ में देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, लेकिन आप वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, यस. नाउ ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज़ कि जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये आपको ना केवल मैग्नीट्यूड बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आफ्टर नोइंग द properties of scalar and vector quantities, the most important thing which comes is the distance and displacement. जैसे कि मैं इस बारे में आपको क्लास में भी बता चुकी थी और एक वीडियो के थ्रू भी मैंने बताया था. सो लेट्स सी अगेन दैट डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ और द पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी while moving from its initial position to final position. यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, वो एक्चुअल पाथ जो कि ये बॉडी ट्रैवल करती है, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी because you know that distance is only giving you the magnitude and it is not giving you any direction. Therefore, only magnitude is important, not the direction of movement. It is referred to as the scalar quantity. Now its SI unit is meter. Okay, so let's see the points about displacement. जैसे कि आप जानते हो displacement is the shortest distance between the initial and the final position of the body. यानी कि displacement क्या है, displacement वो shortest distance है जो किसी भी initial या final position of the body के बीच में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये आपका घर है और ये घर से ये आपका स्कूल. अब घर से स्कूल जाने के जो डिस्टेंस है, इट कुड बी the dotted one that you can move from any path you want, but the displacement from home to school is the straight line
which has been shown, and it is because it is the shortest distance between the initial position. आपका initial position घर था और जो final position है वो स्कूल थी, तो उसके बीच का जो shortest distance है वो कहलाता है आपका displacement. Okay, so this is the basic difference between distance and displacement. अब जैसा कि आपने देखा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, यही वेक्टर क्वांटिटी है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है. एंड इन डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. और जो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है मोशन की वो हमेशा इट इज़ बीन डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ मूविंग अहेड टू स्पीड एंड एवरेज स्पीड. जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया ही था दैट स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. या स्पीड को आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी तेज़ी से या कितनी धीरे चल रही है वो कौन बताता है आपको? वो स्पीड बताती है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है. इट टेल्स यू कि वो बॉडी तेज़ी से चल रही है या धीरे से चल रही है. ठीक है. whereas जो मैथमेटिकल इक्वेशन है स्पीड की, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, and now you can see that the mathematical equation of speed is distance upon time. तो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी. जैसा कि आपने देखा स्पीड डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? यस, टाइम को हम मेजर करते हैं. देखिए, जैसा कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं whereas टाइम को सेकंड में. तो आप देखिए जो स्पीड है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में ले रहे हैं और टाइम को हम सेकंड्स में ले रहे हैं. अब देखिए, ये तो बात हुई स्पीड की. ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट दैट स्पीड इज़ अ scalar quantity, not a vector quantity, because speed is only giving you the magnitude and no direction. Okay, now moving ahead to the average speed. Now a body is traveling from one location to another, might stop, slow down, speed up or move. ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि जब आपकी बॉडी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल करती है तो व्हाट हैपन्स कि उसकी जो स्पीड होती है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, एंड समटाइम्स इट स्टॉप ऑल्सो, और योर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है बॉडी की, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. क्योंकि उस समय पे यू कैन नॉट कैलकुलेट द स्पीड बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है इट इज़ वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम. ठीक है, जैसा कि आपने देखा स्पीड का ही फॉर्मूला जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को जब आप एक एवरेज स्पीड के लिए मैथमेटिकल एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अपॉन द टोटल टाइम टेकन. ओके, नाउ मूविंग अहेड, coming to the next part, that is velocity.
when we include the direction of motion with speed, we are talking about the physical quantity called velocity. जैसे कि आपने देखा था, स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी इसलिए मान रहे थे बिकॉज स्पीड इज ओनली गिविंग यू द मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज बीन told to you in the speed factor. But when we come to the velocity, it means whenever there is the direction of motion is given with the speed, it means we are gradually talking about the physical quantity which is known as velocity. Thus velocity is speed with direction, and it is defined as the rate of change of displacement. It is a vector quantity, therefore the direction of movement is important, and you can see that the mathematical expression for velocity is displacement upon time interval. जैसा कि मैंने आपको बताया, velocity is defined as the rate of change of displacement, and you can also call that velocity is speed with direction. यानी कि जब जो आपकी स्पीड है, इट इज़ बीन गिवन यू विद अ डायरेक्शन, इट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस और द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, नाउ कमिंग टू द एवरेज वेलोसिटी. जैसे आपने देखा एवरेज स्पीड में, उसी तरीके से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी है ये भी जो एवरेज वेलोसिटी है. Let's see what is this all about. When your body is moving from point to another, it may change its velocity a number of times, but it will have an average velocity of its journey. जैसा कि आपने देखा, जब आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आप किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही कैलकुलेट कर पाएंगे. सो it has been given, and let's see what is this average velocity. क्योंकि आप वहाँ पे velocity calculate नहीं कर पाएंगे because आपकी जो body है it is varying its velocity. ठीक है, इसलिए उस केस में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप average velocity कैलकुलेट करेंगे, and it is defined as the net displacement divided by the total time to travel, and it is average velocity is equals to initial velocity plus final velocity upon the period of time. or you can also say that इसकी भी जो यूनिट होती है it is meter per second. and one more thing, you should remember that the velocity can be positive, negative or zero. okay, जो velocity है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव या फिर ज़ीरो. Okay, now moving ahead, I hope this is clear. To the next part, that is uniform motion. Students, uniform motion is defined as a body with covers equal distances along with a along a straight line in regular intervals of time. देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म. यानी कि जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रही है. तो अब अगले सेकेंड में वो कितना कवर करेगी, ग्रेजुअली 20 मीटर्स. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेकेंड मोर 10 मीटर्स. सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट द बॉडी इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, नाउ लेट्स सी one more example which is given here. A ball is pushed in free space will continue to move freely covering equal distances in equal interval of time along a straight path. यानी कि जब आपने एक बॉल को पुश किया इन फ्री स्पेस, इट विल कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली, और वो यूनिफॉर्मली मूव करते हुए इट विल कवर equal distances in equal interval of time. And you can see that the distance time graph of uniform motion is a straight line graph, as you can see in this figure which has been given on this slide. Okay,
And one more thing, there are certain more examples of uniform motion. For example, the different ex- uh, examples been given by you in the class. Let's consider one very simple one जो आप सभी ने पढ़ा होगा, the motion of a simple pendulum. आपने देखा होगा जो पेंडुलम होता है, जो उसकी जो बॉब मूव करती है, it moves with a regular interval of time and it has been considered in uniform motion. Okay, now moving ahead, this was all about uniform motion. अब आप देखिए आगे जो आपका है, it is non-uniform motion. So students, as you know that non-uniform motion is just the opposite of uniform motion. जब आप देखिए आपकी जो बॉडी है, it covers unequal distances in equal interval of time, then the motion is said to be in non-uniform motion. जैसे कि आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो बॉडी थी, इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट नॉन यूनिफॉर्म में आपकी जो बॉडी है, इट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इट विल नॉट अ लीनियर लाइन, वो लीनियर नहीं होगी, वो किसी कर्व्ड या दूसरा कोई भी शेप इट कैन टेक अकॉर्डिंग टू दी रीडिंग्स. ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द बॉल टेक्स अ कर्व पाथ व्हेन थ्रोन एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम. जैसे कि आपने देखा, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इट टेक्स अ कर्व्ड पाथ एंड द मोशन ऑल्सो चेंजेस विद टाइम. Also, it covers unequal distances in regular intervals of time, so this motion is known as uniform motion. And considering most of the examples which you gave in the class, that the motion of a train आपने बताया था, and the motion of an athlete while he is running, कि जो एथलीट होता है when he starts running तो उसकी स्पीड कम होती है, बट ग्रेजुअली जैसे वो थोड़ा समय होता है, देन व्हाट हैपन्स कि उसकी स्पीड जो होती है वो इट इंक्रीजेस, है ना. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Now students, coming to the next part after the uniform and non-uniform motion is acceleration. That what is this acceleration? आप देखिए ध्यान से, acceleration is defined as the rate of change of velocity. अभी मैंने आपको velocity पढ़ाया था. velocity क्या बताया था मैंने आपको? It is defined as the rate of change of displacement. यानी कि जब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आप देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू कैन स्टेट इट एज वेलोसिटी. वही सेम चीज़ जब आपकी बॉडी जो इट कीप्स अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, देन दैट रेट इज डिफाइंड एज टू बी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी में आपकी दो चीज़ें आई थी, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी. अब आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को फॉर एग्जांपल देखिए, आप इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दिस इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी. अब देखिए द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेज द चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज इन वेलोसिटी का आप फॉर्मूला देखिए, इट इज v माइनस u जो यहाँ दे रखा है, एंड टाइम टेकन कुड बी t. इफ there is a time difference, then you can take it as t2 minus t1, or else this is the formula for the acceleration, that is v minus u upon t. It is all about the acceleration की जो acceleration है वो आप ऐसे define करते हैं that the rate of change of velocity. Here you can see the rate of change
कि जो आपकी वेलोसिटी है उसके रेट में एक चेंज आ रहा है, एंड इट कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. And always remember that acceleration is a vector quantity because it is giving you the direction as well as the magnitude also in which the force is causing the acceleration. Okay, suppose let's see an example which is given here. ये मैंने आपको formula बताया था. This is the formula for acceleration. Let's see the example that suppose the velocity of a car is u for time t1. अभी मैं यहाँ इस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ कि अभी वेलोसिटी ऑफ कार इज u एट t1 एंड लेटर जो टाइम हो गया वो t2 हो गया. ठीक है, देन द वेलोसिटी बिकम्स v. अब आपको जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे देन यू विल टेक v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1. ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था जब दो टाइम इंटरवल आपको दे रखे होंगे देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड व्हेन इट इज सर्टेनली टोल्ड टू यू कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तब आप v माइनस यू अपॉन टी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, नाउ मूविंग अहेड. टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स, अभी जैसा मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था उसी तरीके से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इट कम्स अंडर एक्सेलरेशन. अब आप देखिए एक्सेलरेशन, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो आपके वेलोसिटी के चेंज होने का रेट जब वो कांस्टेंट रहता है तो द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. ठीक है, एंड यू कैन सी जब आपकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट कुड बी अ कांस्टेंट line which is representing this graph, तो it is your uniform acceleration. and इसके examples हैं when you include a ball under free fall, a ball rolling on an inclined plane and a car accelerating on a straight traffic free road. ये आपके कुछ examples दे रखे हैं इन्होंने uniform motion के, and this part I am giving you as homework. You all will read this from your books and will discuss it in the class later on. Okay, in the next class we'll discuss this. So I'm not explaining you this briefly because मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिया, तो आई होप यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया कि अब ये है क्या. तो मैं आपको इन जनरल बस बता दे रही हूँ, बाकी आप रीड करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. ओके, नाउ लेट्स सी द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब देखिए जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंगली देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. जैसे कि जब आपकी कार इट इज़ एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद ट्रैफिक, जब ट्रैफिक होता है तो जो आपकी कार होती है सडनली इट टेक्स अप द हाई स्पीड, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है. कभी कभी आपने देखा होगा कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक. ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम फुल स्पीड में गाड़ी निकाल के ले जा सकते हैं, नहीं ना. तो जो आपकी वेलोसिटी है व्हेन इट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट motion is known as non-uniform accelerated motion. Okay, now as you all know, your homework for today is that you will be reading this uniform and non-uniform acceleration, and then we'll be discussing about this in the next class. With this students, your first portion of the chapter motion has been completed till acceleration, and इसके आगे के जो exercise question है we'll be discussing them, and from the next class we'll discuss this as well as जो next portion है आपके the equations of motion वो हम continue करेंगे. Okay, I hope everything is been clearly understood by you all, and in case you have any doubts or any questions then you can ask me. ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी इन द क्लास और एल्स यू कैन टेक्स्ट योर क्वेश्चंस टू मी सो दैट दे कैन बी क्लैरिफाइड इन द क्लास. ओके, विद दिस लेट्स स्टॉप हियर and I hope you will see this video
and this will give you a better perception of the chapter. Thank you and have a nice day, students.